In this lecture we'll see the next topic, that is polynomial regression. So what is this polynomial regression is that first of all we'll see these two difference between these two diagram. ओके सो यहाँ पे जो भी ग्राफ गिवन है, दिस इज़ द लीनियर मॉडल. वी कैन सी बाय लुकिंग टुवर्ड्स दिस ग्राफ वी कैन directly say that this is the linear model, because here one line is there which is the linear line, right? So data set are in the linear nature, we can directly say from this model. Okay, so here data set is in linear nature, that's why we are getting here the linear line, right? Now here if we consider here we are not getting it in a uniform manner, right? तो यहाँ पे जो था linear means what, जो भी data points है from the data sets, ये क्या है, इस line के आजू बाजू में ही plot हो रहे सारे, right? सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो आजू बाजू में ही प्लॉट हो रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, लीनियर बोल रहे हैं. एक ही लाइन में वो आ रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ लीनियर. बट अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वेदर दिस इज़ इन लीनियर मैनर, एक लाइन में आ रहे हैं क्या, नहीं है, राइट? सो डेटा सेट यूज्ड ओवर हियर इज़ अ नॉन लीनियर डेटा सेट. Okay, clear the difference between these two. Here whatever the data set is used, that is linear in nature, and here whatever the data set is used, that is non-linear in nature. Okay, now if we apply the linear model on the linear data set, obviously we get the good result with the good accuracy, right? Because we are applying the model, linear model on the linear data sets, that's why we get the good result with the good accuracy. But if we apply the linear model on the non-linear data set, means ऐसे हो जाएगा वो, right? If we apply the same model, that is same linear model on the non-linear data set, so whether we get the good result, no, so we get the bad result with the less accuracy and with the more loss function and with the more error rate, right? Less accuracy with the more error rate, or we can say in the form of function more loss we get, right? So accuracy also, that's why gets degraded. Okay, now अभी हमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन का फंडा क्या है, सेम लीनियर मॉडल हमें अप्लाई करना है नॉन लीनियर डेटा सेट के ऊपर, लेकिन हमारी एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए. तो ये करना है हमें. तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें कुछ एड ऑन्स करेंगे सो दैट it can be applied on the non-linear data set also. ठीक है, तो same linear non-linear data set also we can apply linear model but with some add-ons. ठीक है, and this add-on is nothing but the polynomial regression. ठीक है, लीनियर मॉडल हमें नॉन लीनियर डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग सर्टन एड-ऑन्स, बाय एडिंग सर्टन एड-ऑन्स, दैट वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल रिग्रेशन. तो अभी ये कैसे करेंगे हम लोग, सो सी हियर, सो दिस वी ऑलरेडी सॉ, सो दिस इज़ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट्स व्हाई दिस इज़ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, राइट? नाउ हियर y is equals to alpha 0 plus alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 up to alpha n xn, right? So this is what multiple linear regression, because here multiple independent variables are used and one dependent variable is used, right? तो यही इसी फॉर्मूले को, दिस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द कांस्टेंट, राइट? सो ये हम लोग एज इट इज़ रखेंगे प्लस अभी यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा एन एक्स
m तक जा रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to m अल्फ़ा i x i, राइट क्योंकि ये मॉडल 1 से कहाँ तक जा रहा है, m तक, तो इसी को हमने क्या है एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1 to m अल्फ़ा i x i, क्लियर। नाउ यहाँ पे क्या है, अभी द पावर ऑफ x क्या है, यहाँ पे हर एक जगह पे पावर ऑफ x क्या है, 1 है। यहाँ पे भी देखो पावर ऑफ x क्या है, 1 है। यहाँ पे भी देखो पावर ऑफ x इज़ 1, पावर ऑफ x इज़ 1। यहाँ पे भी क्या है, पावर ऑफ x इज़ 1। सो दैट्स वाई इट इज़ अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, बिकॉज द पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1, दैट्स वाई इट इज़ अ 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों करेंगे दैट विल से। सो फर्स्ट अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, 0 डिग्री लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट मीन्स अल्फ़ा 0 ही आ जाएगा। कैसे, बिकॉज अगर मैं x रेज़ टू पावर 0 लूँगी तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज़ 1, राइट। सेम x टू e रेज़ टू पावर 0 ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कांस्टेंट। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरा कांस्टेंट आ जाएगा, क्लियर। नाउ इफ़ वी टेक द डिग्री 1 डिग्री, सो दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी गॉट, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, m इज़ द स्लोप एंड c इज़ नथिंग बट द इंटरसेप्ट, और m इज़ वी कॉल्ड इट एज द कोएफिशिएंट एंड c वी कॉल्ड इट एज अ इंटरसेप्ट, ठीक है। सो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप लाइन, बिकॉज स्लोप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या फॉर्म हुई, हमारी स्लोप लाइन फॉर्म हो रही है, राइट। नाउ अगर हम लोग डिग्री 2 कंसीडर करते हैं तो डिग्री 2 कंसीडर करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हम लोग अगर डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, जो भी लीनियर मॉडल का इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगा, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 1 x प्लस अल्फ़ा 2 x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 x क्यूब प्लस अप टू अल्फ़ा n x रेज़ टू पावर n, ऐसे बन जाएगा, राइट, ठीक है। मीन्स दिस इज़ व्हाट, n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी इस n डिग्री पॉलिनोमियल को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन फॉर्म किया है, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू m 1 to m, that is alpha I x i. This is the linear model equation that we already formed. So यहाँ पे हमने फॉर्म किया था, वही हमने क्या किया, एज इट इज़ वहाँ पे उठाया, राइट। सो एज इट इज़ उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस एफ पी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस एफ पी, वही है एड-ऑन्स विच वी कॉल्ड इट एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एड ऑन क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, दैट इज़ एफ पी विच वी कॉल्ड इट एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ व्हाट डज इट डू, it will simply add the variables, ठीक है। what is this polynomial function and what it does, it simply add करने की कोशिश करता है। क्या ऐड करने की कोशिश करता है, वेरिएबल्स को विद द हायर डिग्री, क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं तो दिस इज़ द फीचर्स अवेलेबल, दैट इज़ x1 एंड x2, दीज आर द फीचर्स अवेलेबल फॉर अस इन द गिवन डेटा सेट, ठीक है। गिवन डेटा सेट में 2 फीचर्स हैं हमारे, x1 एंड x2। हम लोग न्यू फीचर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट वी कैन कंसिडर एज द fp, that is the polynomial function which adds this extra variable with the degree 2। तो ये जो ऐड करेंगे हम लोग वेरिएबल्स विथ हाउ मच डिग्री, दिस इज़ डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर, ठीक है।
ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है कि वो जितने भी पावर की डिग्री उनको चाहिए उतने पावर की डिग्री वो वहाँ पे बोल सकते हैं, उतने पावर की डिग्री तक वो ऐड करते जाएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे हमने 2 डिग्री बोला है तो इसीलिए 2 डिग्री तक यहाँ पे ऐड किए, दैट इज़ x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में हमें पता है कि ये जो है पैराबोला टाइप शेप आता है 2 डिग्री में, राइट? सो दैट्स वाई हमने कहा तक 2 डिग्री में क्या है, पैराबोला टाइप शेप आता है, और हमारे यहाँ पे भी क्या है, पैराबोला टाइप शेप है, राइट? तो इसीलिए हमने इस डेटा सेट में क्या किया, सिर्फ 2nd डिग्री तक ही वेरिएबल्स ऐड किए। ठीक है, और अगर मुझे ज़्यादा डिग्री तक ऐड करने हैं, इफ़ देर इज़ द अनदर शेप विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द नॉन लीनियर मॉडल, तो हम लोग और हायर डिग्री तक इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पॉलीमोनोमियल रिग्रेशन कि हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मॉडल को ही ऑन नॉन लीनियर डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे बाय एडिंग द add-ons, that is nothing but the polynomial function which adds the variable with the higher degree. Clear? So this is all about polynomial regression.